Hello students, today we are going to learn 9th standard 6th lesson, that is classification of plants. Now this comes under science 2 paper. We are going to see first of all what is last year's basic knowledge, that is living organisms, how they are classified. Let us begin with that. Now this is 6th lesson, classification of plants. Now let us begin with, can you recall how have living organisms been classified? You have already studied the kingdom Monera, Protista, fungi of the 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1969 for the study of living organisms. Now, what is this Whittaker's classification? Let us see. Living organisms are classified as prokaryotic organisms and eukaryotic organisms. You all know that prokaryotic organisms are primitive type, the organisms which are having primitive type of nucleus. Karyon means nucleus, pro means primitive type. Eukaryotic means advanced type of nucleus where all the cell organelles are present, like mitochondria, Golgi bodies, then endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, etc. Okay. Now prokaryotic organisms, under which kingdom Monera comes. Then eukaryotic unicellular Protista falls under the category. Then eukaryotic but multicellular. And then there are two types, with cell wall, without cell wall. You all know that plant cell has a cell wall and animal cell do not have cell wall. That is why here are plants classified under with cell wall, autotrophs, and heterotrophs are the fungi. So autotrophs are the plants, meaning they are having chlorophyll and chloroplast. With the help of that they can manufacture their own food material. Now without cell wall are animalia, where they are showing again heterotrophic nutrition. So fungi fall in the category in between. They are having cell wall also, but they are not autotrophic. They do not prepare their own food because they lack chlorophyll. So totally in the 5 kingdom classification, first kingdom is kingdom Monera, then second is kingdom Protista, which is under eukaryotic unicellular, then kingdom Plantae, which is multicellular and autotrophic, and then kingdom Fungi, that is multicellular with cell wall but heterotrophic, and the last 5th kingdom is Animalia, where organisms are multicellular but without cell wall. So this is what is a 5 kingdom classification system. I am going to put the picture of this also, which was there in 8th standard textbook. So I am going to put the slide after this. हिंदी में भी summarize करती हूँ. That is, living organisms are classified as prokaryotic organism and eukaryotic organism. Prokaryotic means जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है उनको मोनेरा बोलते हैं. देन जिनका न्यूक्लियस एडवांस है लेकिन एक सेल से बना हुआ है, दैट कम्स अंडर प्रोटिस्टा. नाउ जिनका न्यूक्लियस एडवांस है बट जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है. देन जिनके पास सेल वॉल है एंड जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं वो ऑटोट्रॉफ के अंडर आते हैं. नाउ मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है लेकिन विथ सेल वॉल है बट हेट्रोट्रॉफ, मतलब उनका खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, वो फंजाई के कैटेगरी में आते हैं. एंड मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक बट विदाउट सेल वॉल जो आते हैं एनिमैलिया में, जो प्राणीजन इसमें आते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. सो लेट्स गो अहेड. नाउ what are the hidden secrets of the kingdom Plantae which impart this green freshness to our surrounding? Just how much diversity is there in this kingdom? मतलब क्या है प्लांट कैटेगरी में, किंगडम में,
जो अपने सराउंडिंग को फ्रेश रखते हैं। नाउ कितनी डाइवर्सिटी है उनमें? डाइवर्सिटी तो बहुत सारी है, मतलब यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर प्लांट्स है, और जायंट सेक्वोया लाइक ट्री है, कोनिफेरस ट्री which is called redwood, tallest and hardest tree which is 275 feet means 83 meters. ओके, सो ये जो सेक्वोया ट्री है उसका पिक्चर भी मैं आगे डालने वाली हूँ। वो कहाँ है? दैट इज रेडवुड नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया। ओके, एंड देन द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट जो है वो वोल्फिया है, वोल्फिया स्पीशीज़ है। उसका साइज़ क्या है देखो, 1/42 इंचेस ऑफ लॉन्ग एंड 1/85 इंचेस ऑफ वाइड, सो इट इज़ वेरी वेरी टाइनी। दिस पिक्चर्स आर ऑल्सो आई एम गोइंग टू पुट, मैं ये पिक्चर भी डालने वाली हूँ। सो इतनी वैरायटी है प्लांट्स में कि छोटा सा छोटा और बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। द टॉलेस्ट ट्री विच इज सेक्वोया। नाउ लेट अस बिगिन विथ द नेक्स्ट, दैट इज can you recall which are the special cell organelles that differentiate plant cells from animal cells? Now let us go ahead with this. मतलब क्या है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है वो प्लांट सेल से एनिमल सेल में अलग है, ये देखेंगे अभी हम आगे जाके। ये देखो क्वेश्चन, विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल्स फ्रॉम एनिमल सेल, जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है उसका आंसर ये है कि एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड लाइजोसोम्स, वेयर एज द प्लांट सेल्स डू नॉट हैव। ओके, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था, 7th स्टैंडर्ड में भी देखा था, ये भी मैं आगे जाके आपको देने वाली हूँ। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टिड्स which are used for storage and large number of central vacuole present, whereas animal cells do not have. चलो आगे जाके देखते हैं कैसा है ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। ये देखो आपके 7th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ डायग्राम। ये देखो यहाँ प्लांट सेल दिखाई है, यहाँ सेल वॉल है, जो कि यहाँ वो नहीं है। नाउ यू कैन सी सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल बड़ी से बड़ी यहाँ है, वेयर एज हियर इन द एनिमल सेल वैक्यूल स्मॉल है और सेंट्रली प्रेजेंट नहीं है। यहाँ देखो साइटोप्लाज्म है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है जो कि यहाँ नहीं है। नाउ यू कैन सी न्यूक्लियस शिफ्टेड टू वन साइड। क्यों न्यूक्लियस शिफ्ट हुआ है एक बाजू में? क्योंकि सेंट्रली प्रेजेंट वैक्यूल है प्लांट सेल में। और यू कैन सी यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है, लेकिन यहाँ क्या है? खाली सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी है, यहाँ भी गोल्गी बॉडी है। नाउ यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ व्हाट इज डिफरेंट? यहाँ लाइजोसोम्स है, वो यहाँ नहीं है। नाउ फ्री राइबोसोम्स आर देयर विच आर राउंड स्मॉल बॉडी, छोटे छोटे गोल गोल जो है उसको बोलते हैं राइबोसोम्स। दे टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ जो छोटे छोटे दिखते हैं राउंड बॉडीज वो है फ्री राइबोसोम्स, वो दोनों में है। So that is what is the difference between plant cell and animal cell. You can draw this picture or you can take the picture from, or you can see, or you can refer 7th standard textbook. 7th standard के टेक्स्ट बुक में से आप डायग्राम निकाल सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा रिवीजन करना आगे जाने के लिए ज़रूरी। आगे जाके देखेंगे क्या है। The group of autotrophic living organisms having eukaryotic cells with cell walls is the group of Plantae. So हमने देखा जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं जो यूकैरियोटिक है, मतलब उनका न्यूक्लियस डेवलप्ड है और सेल डेवलप्ड है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्लांट्स
have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. क्लोरोफिल है, इसके लिए वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांटे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब सोलार एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करने के लिए खाली प्लांट्स ही रिस्पॉन्सिबल है. मतलब ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल. नहीं तो ये एनर्जी ट्रैप करने की किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी नहीं है. मतलब वो खाना नहीं तैयार कर सकते, उसकी वजह से एनर्जी तो ट्रैप होती है लेकिन उसकी वजह से खाना नहीं तैयार कर सकते. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द advantage of these plants, and that is why we get lot of oxygen, because you all know that by the production of energy, conversion of solar energy into chemical energy, that is plants are manufacturing food, that is 6CO2 plus H2O, then they form C6H12O6, that is glucose, प्लस ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर. उसकी वजह से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एंटर होता है एंड उसकी वजह से हमको फ्रेश एयर मिलती है. नाउ लेट अस गो अहेड फॉर द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. नाउ क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है पहले बताते हैं कि अगर हैफाज़ार्डली बुक्स रखे हैं लाइब्रेरी में तो हमको जो बुक जब भी चाहिए तभी नहीं मिल सकता है. सो उसके लिए उसको कैटेगराइज करना ज़रूरी है. मतलब हिस्ट्री के बुक एक जगह, ज्योग्राफी के एक जगह, साइंस के एक जगह, ऐसा कैटेगरी करेंगे तो तुरंत अपने को जो बुक चाहिए वो मिल सकते हैं. वैसे ही क्लासिफिकेशन का है. क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि टू स्टडी कैरेक्टर्स, primitive character, then advanced character, now how the all kingdom are connected to each other, how organisms are connected to each other, उसके लिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है. लेकिन वो कौन से पॉइंट्स याद रख के ध्यान में लेके क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो क्लासिफिकेशन के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. सो बच्चे लोग ये इसको फर्स्ट पॉइंट करो, कौन से पॉइंट से क्लासिफिकेशन किया जाता है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब है क्या प्लांट में, उसके मुताबिक उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है. Presence or absence of separate conducting tissue for conduction of water and food is the next consideration for classification. So उसको second point दे दो. Presence or absence of conducting tissue मतलब xylem and phloem, जो रूट से पानी खींचते हैं और वो roots are conducting that water and minerals and sending it to the leaves. सो पौधों को पानी कैसे मिलता है? हम जब भी वाटरिंग करते हैं पौधों को तभी पानी रूट्स खींच लेती है और वो उसको ट्रांसफ़र करती है स्टेम की तरफ और लीव्स की तरफ. कौन से टिश्यू से? कंडक्टिंग टिश्यू से. कौन से टिश्यू कंडक्टिंग? दैट इज जाइलेम एंड फ्लोएम आर द कंडक्टिंग टिश्यू. सो वो सेकेंड क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, पॉइंट टू कंसिडर टू क्लासीफाई. नाउ डू द प्लांट्स बेयर सीड्स, ये थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन का. प्लांट में सीड होते हैं क्या? कौन से प्लांट में सीड होते हैं उसके मुताबिक वो क्लासीफाई होता है. इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट, मतलब जिम्नोस्पर्म्स जो है उनके सीड्स जो है, सीड्स है उनमें लेकिन वो नेकेड है, वो फ्रूट के अंदर नहीं है. तो वो नेकेड है कि दे आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट लाइक द इन द एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म देखा जाए तो आम को देखो, आप आम को देखो, आम के अंदर सीड रहती है. सो सीड इज सीड इज कवर्ड विद द फ्लेशी टिश्यू विच इज देयर इन द मैंगो दैट वी ईट. सो उसके ऊपर कवरिंग रहता है, उसको बोलते हैं प्लांट्स विच आर एंजियोस्पर्म. सो ये चौथा क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए. फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन द सीड्स. अभी हमने प्लांट को क्लासिफाई किया
अभी आगे जाके ये जो एंजियोस्पर्म्स है, मतलब सीड बेयरिंग प्लांट्स, सीड तो बेयर जिम्नोस्पर्म भी करते हैं, लेकिन वो सीड्स आर नेकेड वो फ्रूट के अंदर नहीं है। अभी फ्रूट के अंदर सीड है, मतलब वो एंजियोस्पर्म है। अभी एंजियोस्पर्म तो है, लेकिन उसमें दो टाइप है अभी, मोनोकोटिलिडोनस एंड डाइकोटिलिडोनस, जिसमें मोनोकोटिलिडोनस में सीड में एक ही भाग होता है, वेयर एज डाइकोटिलिडोनस प्लांट में सीड में दो पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं टू कोटिलिडॉन्स, और डाई मीन्स टू कोटिलिडोनस। सो ऐसे कौन से हैं, आपने देखा होगा कि मैंगो में भी आपने अंदर जो हम खाते नहीं है, सीड को अंदर काट के देखा तो उसके दो पार्ट्स बनते हैं। पी इज़ अनदर थिंग, मटर जो हम खाते हैं उसके सीड को अगर दो भाग में बांटा जा सकता है, वेयर एज मकई जो भुट्टा हम खाते हैं ना मकई का, वो मकई के एक दाने को देखो वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है, सो उसको बोलते हैं मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। हाँ, एट हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर फॉर क्लासिफिकेशन, मतलब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन के लिए जाते हैं। कौन से? डिपेंडिंग अपॉन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। मतलब मैंने जो पहले बोला, फ्लावरिंग प्लांट है क्या कि नॉन फ्लावरिंग है, जिनको फ्लावर्स आते ही नहीं है, फ्रूट्स आते ही नहीं, वैसे है क्या, उनमें सीड है ही नहीं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राम्स। एंड जिसमें ये जो सीड है, फ्रूट है, फ्लावर्स हैं, उसको बोलते हैं फैनरोगैम्स। फैनरोगैम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो दूसरा और आगे जाके ये क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, सो उसको भी बच्चे लोग तुम अंडरलाइन करो और मार्क करो। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर इनक्लोज विद इन अ फ्रूट और नॉट, फैनरोगैम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। पहले ही मैंने बताया कि फैनरोगैम्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में दो पार्ट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नॉट एनक्लोज विद इन फ्रूट, सीड को कवरिंग नहीं है फ्रूट का, वेयर एज इन एंजियोस्पर्म सीड्स आर एनक्लोज विद इन फ्रूट, जैसे मैंगो मैंने बोला। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन द सीड। ओके, सो ये लास्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। अभी देखेंगे बॉक्स में क्या दिया है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। इन 1883 Eckler is a botanist, classified kingdom Plantae into two subkingdoms. As a result, two subkingdoms, cryptograms and phanerograms, were considered for plant classification. अभी आगे जाके देखेंगे ये क्रिप्टोग्राम्स क्या है और फैनरोग्राम्स क्या है।